It's a great joy for me and my family to wish you all of God's blessings this evening. ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज की शाम को मैं परमेश्वर की सारी आशीषें आपके लिए बोल पा रहा हूँ। My wife and I were here to pray for you 16 years ago. मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर आए थे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आज से 16 साल पहले। We are glad to be back again. और हमें फिर से यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। How many of you attended that meeting 16 years ago in the same Maidan? आप में से कितने लोग 16 साल पहले इस सभा में आए थे? इसी मैदान में वो सभा हुई थी 16 साल पहले। Wonderful. There are many more of you now. Wonderful. It's a joy to be with you. और आपके बीच में हमें बड़ी खुशी हो रही है। Today we have come as a family to minister to you. आज हम एक परिवार के रूप में आए हैं आपके बीच में सेवा करने के लिए। God has blessed our family and expanded it. हमारे परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीष दी और उसे बढ़ा दिया है। And we have come here to minister to our family in Arunachal Pradesh. और हम परिवार के साथ हमारे यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश का परिवार है उनकी सेवा करने के लिए आए हैं। We consider you as our own brothers and sisters and darling children. और हम आपको अपने खुद के भाई और बहन और बच्चों के समान देख रहे हैं। These 3 days as a family we are going to sit together at the feet of the Lord and pour out our sorrows to Him. और आज आने वाले ये 3 दिन हम ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने बैठेंगे और हम सभी अपने दुख और कष्टों को उसके आगे उंडेल देंगे। And God Almighty, the Lord Jesus, shall come amongst us and bless us abundantly. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आएगा और हम सभी को बहुत आशीष देगा। As Jesus comes, और जैसे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, all your sorrow will turn into joy. तो आपका सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Shall we all shout joy? हम सभी चिल्लाएंगे आनंद। One more time, raising your hands. Shall we all shout joy? एक बार फिर हाथ उठाते हुए कहे आनंद। Amen. That's what Jesus is here to give you. और यही देने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके बीच में है। We want to come before you as a family. I request my wife, Sister Evangeline Paul Dinakaran, and our beloved granddaughter Caitlin to come. और हम बहन इवेंजलिन और कैटलिन को स्वागत करेंगे कि वो आगे आए। And also our beloved son Samuel Dinakaran. और हमारा बेटा भी हमारे साथ में है, शैमुएल पॉल दिनकरन। His wife Dr. Shilpa couldn't come because she's doing her masters in surgery. और इनकी पत्नी डॉक्टर शिल्पा नहीं आ पाई हैं क्योंकि वो सर्जरी में अपना मास्टर्स कर रही हैं। And we have our beloved daughter Stella Ramola and her beloved husband Daniel Davidson. और स्टेला रमोला और उनके पति डैनियल डेविडसन भी यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। They just got married last month. पिछले महीने ही इनकी शादी हुई है। And we are here as a family to minister to you. हम यहाँ पर एक परिवार के रूप में आए हैं आपकी सेवकाई करने I के लिए। believe God will bless all your families. मेरा मानना है कि परमेश्वर आपके सारे परिवारों को आशीष देगा। And as we pray together, और जैसे हम साथ मिलकर प्रार्थना you and करेंगे, your children will increase. आप और आपकी संतानें बढ़ती जाएंगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Even this evening, I'm so grateful to God for the Arunachal Christian Forum who have invited us to pray with you these 3 days. और आज की शाम भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि आने वाले 3 दिन हम आपके बीच में मिलकर प्रार्थना कर सकें। God bless the efforts of our dear brother Tar Miri, brother Norbu Sonam, brother James Tekitara, Reverend Dr. Tana Tagitara, and all the brothers and sisters who have worked with them अभी जिनके to नाम, arrange this meeting. Shall we give them a big hand clap and thank them? आइए इन सभी के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें। And especially I'd like to thank everyone who prayed with fasting
for God to bless all of you. और उससे बढ़कर हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी का जिन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की इन सभाओं के लिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। What they have done in secret, God will reward them openly. जो इन्होंने गुप्त रूप में किया है प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर सबके सामने उसका इनाम देगा। We are privileged to have the honorable ministers with us this evening. और आज की शाम हमारे आदरणीय मंत्री यहाँ पर आएंगे। Shri Honchun Gamdam, the Minister RWD. We warmly welcome you, sir. It's a joy to have you with us. RWD के मंत्री जी हमारे बीच Shri में, हम इनका स्वागत करते Raman हैं। Felix, the Home Minister, we warmly welcome you, sir. And Shri Laisim Simai, the MLA, we warmly welcome him. And all the dignitaries on the platform and in the audience. God bless you richly. जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। Why we are here? सवाल यह है कि हम यहाँ क्यों हैं? We are here to pray with you. हम यहाँ पर आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने को आए हैं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, if two of you agree on earth concerning anything, it will be done by my Father in heaven. यीशु मसीह ने कहा, यदि पृथ्वी पर तुम में से कोई भी दो जन सहमत होंगे किसी भी बात पर और प्रार्थना करेंगे, तो मेरा स्वर्गीय पिता उसका उत्तर देगा। I know you may have been tired, suffering. मुझे पता है कि आप दुख उठाते उठाते थक गए होंगे। You may say, I'm not even able to pray. आप ये कहते होंगे कि मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा हूँ, How will I get a relief? तो मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? How will I get out of my tears? कैसे मैं अपने आंसुओं से बाहर आ सकूंगा? When will a miracle happen? चमत्कार मेरे लिए कब होगा? My friend, मेरे मित्रों, we, the Dinakarans, have come to pray along with you to Jesus. और हम जो दिनाकरण हैं, हम यहाँ पर आए हैं आपके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने को। We are not miracle workers, चमत्कार हम नहीं करते हैं, but as we pray together in one accord, Jesus, the miracle worker, will come and wipe away all your tears. और लेकिन जैसे हम एक मन के होकर मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारे हर आंसुओं को पोंछ देगा। We have all come to see Jesus. हम सभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखने आए If हैं। so, would you raise your right hand and shout his name, Jesus? अपने दाहिने हाथ उठाकर जोर से कहे, यीशु, Jesus, यीशु, Jesus. यीशु। Amen. आमीन। He said, ask anything in my name and I will do it. और उसने कहा कि मेरे नाम से चाहे जो कुछ तुम मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। We have all come here to pray in the name of Jesus. हम सभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। We may be in thousands here, हम हजारों की संख्या में यहाँ हैं, but Jesus will come to each one tonight, tomorrow, and the day after. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के लिए आज रात, कल और परसों वो जरूर आएगा। Man looks at the face, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी चेहरा but देखता है, Jesus will look into your heart. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को देखेगा। Whatever you ask along with us in Jesus' name, He will give it to you. हमारे साथ मिलकर जो कुछ भी आप यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे वो आपको दे देगा। He will wipe away your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। You know why? जानते हैं क्यों? Because Jesus has gone through every suffering that you are going through. क्योंकि यीशु मसीह भी हर एक उस तकलीफों और दुखों से होकर गए जिससे आप जा रहे हैं। Look at Him on the cross. क्रूस पर उस यीशु मसीह को देखें, As He took the sins of the whole world upon Himself. और जैसे उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, The darkness of sin covered Him. और अंधकार का, पाप का जो अंधकार था उसने उसे घेर लिया, And in the midst of the darkness, He cried, और उस अंधकार के मध्य उसने पुकारा, My God, मेरा परमेश्वर, my God, हे मेरे पिता, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Maybe you're addicted to alcohol, हो सकता है आपको शराब पीने की आदत हो, drugs, और ड्रग्स की आदत हो, sinful pleasures. पाप की आदतें हों। And because of that, the demon powers may have brought darkness in your life. हो सकता है इस वजह से अंधकार की दुष्ट शक्तियों ने आपके जीवन को अंधकार से भर दिया हो, And you're crying, और आप रो रहे हैं, how will I come out of
this darkness. कि मैं इस अंधकार से कैसे बाहर आ सकूंगा। I have failed God. मैंने परमेश्वर को नाराज I have किया है। failed my family members. मैंने मेरे परिवार के लोगों को नाराज I किया have है। failed myself. मैंने खुद को नाराज किया है। By committing sin, I have allowed the devil to come into me. पाप करने के द्वारा मैंने शैतान को ये इजाजत दी कि वो मेरे अंदर आ जाए। I am forsaken. मुझे लोगों ने I have no way to live. और मैं अब उनके लिए नहीं हूँ। I'm going to end my life. अब जी के क्या फायदा, मैं अपने जीवन को नाश कर You लूंगा। don't need to say that, my brother. मेरे भाई, अब आपको ऐसा कहना नहीं होगा। You don't need to say that, my sister. मेरी बहन, अब आपको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। Jesus has gone through that agony. क्योंकि यीशु मसीह वो दुख पीड़ा से होकर He गए। knows that suffering. वो उन दुखों को जानते हैं। Today, when you call out His name, और आज अगर आप उनके नाम को पुकारेंगे, He will come to you. वो आपके पास आएंगे And He will wash you with His blood. और वो अपने लहू से आपको धोएंगे। Cleanse you from every sin. हर एक पाप से आपको शुद्ध करेंगे। What about your sickness? आपकी बीमारी के बारे में क्या? Jesus went through all the suffering, sickness, pain. प्रभु यीशु मसीह सभी दुख, बीमारी और दर्द के दौर से होकर गए थे। His body was stripped by the Roman whips. और रोम के लोगों के कोड़ों के द्वारा उसके शरीर को छलनी किया गया। It was full of wounds. वो घावों से भरा था। They nailed Him on the cross. उसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। Hands has wounds. उसके हाथों में घाव थे। His legs have wounds. उसके पैरों में घाव थे। He knows your suffering. उसे आपकी पीड़ा पता है। This morning, आज की शाम, a young woman brought her husband to me for prayer. आज की सुबह एक जवान महिला अपने पति को लेकर आई प्रार्थना कराने के लिए। He was put in the car. और उसे कार में लेकर आए। She said उसने कहा, he had a brain attack. इनको ब्रेन अटैक हुआ है। Because of that, his hand, his leg, his mouth has stopped working. और इसीलिए उनके हाथ, पांव और मुंह ने काम करना बंद कर दिया है। Young man, जवान व्यक्ति था। he must be only in his early 30s. और 30 के लगभग उसकी उम्र होगी। Suffering. दुख उठा रहा है। And the wife suffering. पत्नी भी दुख उठा रही है। Jesus knows that agony. और यीशु मसीह ऐसे पीड़ितों से प्यार करता है। His hands were nailed. और उसके हाथों को पर कीले, His legs were nailed. उसके पैरों में कीले ठोके गए। Why? क्यों? To bring healing to your body. ताकि आपके शरीरों को चंगाई मिल To सके, deliver you from all sickness. ताकि आपको हर बीमारियों से छुटकारा मिल सके। He took every one of your sicknesses upon Himself. और इसीलिए उसने आप में से हर एक की बीमारी को स्वयं पर ले लिया। Your weakness upon Himself. आपकी कमजोरी को उसने उठा लिया। Today He has risen up from the dead. और आज वो यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। But His wounds are still in His body. लेकिन उसके घाव अभी भी उसके शरीर में हैं। Today when you call Him, आज जब आप उसे He पुकारेंगे, will come to you now. वो इसी समय आपके पास Lay आएगा। His nail-pierced hands upon you. अपने कीले से छिदे हाथ आपके ऊपर And रखेगा। heal you tonight. और आज की रात आपको चंगाई देगा। Every sickness will have to go. हर बीमारी को जाना ही पड़ेगा। Every pain will have to go. हर दर्द को जाना ही पड़ेगा। Every suffering will have to हर go. तकलीफ को जाना ही पड़ेगा। Every paralysis will have to go. हर एक लकवे के बीमारी को जाना ही पड़ेगा। Every demonic oppression will have to go. हर एक दुष्टात्मा के कार्य को जाना ही पड़ेगा। Because Jesus is here. क्योंकि यीशु मसीह यहाँ है। Jesus is here. क्योंकि यीशु यहाँ है। You have not come here to see any man. यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को देखने नहीं आए Not हैं। Paul Dinakaran or anybody. पॉल दिनकरन या और किसी को देखने Nobody नहीं आए can हैं। bring miracles to क्योंकि you. आपके लिए कोई भी चमत्कार नहीं ला It's सकता। only Jesus who went through all your suffering on the cross, who can deliver you from all suffering. और क्योंकि वो केवल यीशु जो हर दुख और तकलीफ से होकर गया, केवल वही आपके लिए चमत्कार ला सकता है। Come on, give the Lord a big hand clap आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। and shout, Jesus! जोर से चिल्लाएं, यीशु, Jesus! यीशु, Jesus! यीशु। You are my only hope, Lord. तू मेरी केवल आशा है प्रभु। You are my only hope. तू ही केवल मेरी एक You आशा are my है। only hope. तू ही मेरी आशा है। He is here tonight. आज की रात वो यीशु मसीह यहाँ है। He has to come to each one of you वो आप में से हर एक के पास आएगा to wipe away all your tears.
ताकि वो आपके हर आंसुओं को पहुंच सके Turn your sorrow into joy. और आपके दुखों को वो आनंद में बदल देगा। Turn your eyes on Jesus. और इसलिए अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाएं। Turn your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाएं। He loves you. वो आपसे प्यार करता He है। loves you. वो आपसे प्यार करता है। Tell him, Lord, I want to become your child. और कहे उससे कि हे प्रभु, मैं आपकी संतान बनना चाहता I हूँ। don't want to be a sinner anymore. आगे को मैं पाप में जीवन नहीं I जीना don't want चाहता। alcohol anymore. अब मैं शराब पीना नहीं I चाहता don't want betrayal anymore. और अब मैं फंसाया जाना नहीं चाहता। I betrayed my wife. मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। Betrayed my husband. मेरे पति को मैंने धोखा Betrayed my दिया। parents. मेरे माँ बाप को धोखा दिया Betrayed you. और तुझे धोखा दिया Forgive me. और मुझे माफ कर। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास He आए। will cleanse your sin वो आपके पापों को धोएगा by the blood that he shed for you on the cross. उसी लहू से जो लहू उसने आपके लिए क्रूस पर The बहाया। Bible says the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे प्रत्येक पापों से शुद्ध करता है And by his wounds we are healed. और उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। As every demon will leave tonight. और जैसे आज की रात हर दुष्ट आत्मा निकलेगी, When Jesus comes, demons will shriek and leave. जब यीशु मसीह आता है तो दुष्ट आत्माएं घबरा कर निकल जाती हैं And Jesus will deliver you. और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा Jesus will देगा। deliver you. यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। He is here right now. वो यहाँ पर है इस समय। Let us tremble in his presence. आइए उसकी उपस्थिति में हम Be आदर के reverent in साथ his presence. उसकी उपस्थिति का आदर करें। It is the time for your tears to be wiped away by Jesus. ये समय है कि आपके आंसू यीशु मसीह के द्वारा पोंछे जाएं। Here's a wonderful testimony of a girl who received a miracle. और एक बहुत ही सुंदर गवाही है एक लड़की की जिसे उसका चमत्कार मिला। Let's listen to this testimony. आइए इस गवाही को हम सुने। What's your name? आपका नाम? आरती मींज। मेरा नाम आरती मींज है। मैं रांची झारखंड से आई हूँ और मैं जीसस कॉल में यंग पार्टनर्स हूँ और ये मेरी गवाही है। जब मैं 2017 में मैं 12th पास करी थी और उसी ईयर मेरे को जुलाई मंथ में मेरे को अचानक सडन एक दिन मेरे को पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है। एंड मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले बताया और मम्मी ने लेडी डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और वो ट्रीटमेंट मेरा हर महीना मैं डॉक्टर के पास जाती थी, चेकअप कराती थी, मेडिसिन लेती थी और ये लगते पूरा 1 साल ऐसा ही चला गया। लेकिन वो गांठ कम नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता गया 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ता गया। फिर मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि 2018 में कि साल भर हो गया है तो हम लोग एक ऑपरेशन करा के देखते हैं। तो फिर सितंबर के मंथ में 2018 में मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था और वो ऑपरेशन बहुत पेनफुल था। बट फिर उस ऑपरेशन के नेक्स्ट मंथ में ही मेरे को पता चला कि मेरा गांठ फिर से हो गया है और जस्ट ऑपरेशन के बाद मेरे पास फिर से मेडिसिन लेने का ही ऑप्शन बचा था। फिर से मैं नेक्स्ट अक्टूबर के मंथ से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करी और वो लगते ऐसा ही चलता रहा और बट वो गांठ कम नहीं होता, वो बढ़ता ही गया, 1 से 2 होते गया। फिर से वैसा ही वो साल बीत गया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर 2019 में हमने फिर से ट्राई किया कि हम सेकंड ऑपरेशन करा के देखते हैं कि शायद ठीक हो जाए और अक्टूबर के मंथ में हमने फिर से सेकंड ऑपरेशन कराया और उस सेकंड ऑपरेशन के बाद जस्ट फिर से नेक्स्ट मंथ 2019 नवंबर मंथ में मेरे को पता चला कि वो गांठ फिर से हो गया है, वो ठीक नहीं हुआ। 2 ऑपरेशन के बाद मैं हताश हो गई क्योंकि ठीक नहीं हुआ, मेरे पास दम नहीं था कि मैं दोबारा ऑपरेशन कराऊं या फिर मेडिसिन लूं। लेकिन फिर मैं वो 2019 बीत गया, 2020 आ गया जब कोविड आ गया और उस कोविड में 2020-21 2 साल तक मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, बस मैं घर में रहती थी और वो उस 2 सालों में मेरा गांठ 17 गांठों में बदल गया और बहुतों ने मुझे बोला कि हो सकता है वो कैंसर हो सके उसे काट के निकालना पड़े। बट मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं प्रभु से बोलती थी कि प्रभु उससे अच्छा तो मुझे उठा ले, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने फैमिली के लिए बोझ बन गई हूँ, वो मेरे ऊपर बस वेस्ट कर रहे हैं मनी, मैं ऐसा सोचती थी। एंड 2022 में मैं जीसस कॉल प्रेयर टावर रांची में मैं प्रेयर के लिए गई थी और वहाँ पे प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए प्रार्थना किया
और उन लोगों ने मुझे बताया कि नवंबर 2022 में 12-13 तारीख को दिनाकरन फैमिली पार्टनर्स मीटिंग के लिए आ रहे हैं। मैं वहाँ वॉलंटियर के रूप में वहाँ गई थी और 12 नवंबर को मैं प्रेयर दिनाकरन फैमिली सबके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे थे और मैं ब्रदर सामुल दिनाकरन के लाइन में थी और मैंने ब्रदर सामुल दिनाकरन को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने उस हीलिंग को रिसीव किया। और मैं सिर्फ 4 दिन के बाद ही मैं जब 16 नवंबर को मैं जब डॉक्टर के पास गई नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने मुझे एक्सरे के बाद मुझे पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में कोई भी गांठ नहीं है। वो सारा गांठ की महिमा से सारा रिलीज हो गया। उन 5 सालों में वो 17 का 17 गांठ खत्म हो गया और उन 5 सालों में मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ मैं प्रभु की दया से मैं कर पाई और आज 1 साल होने को है और मेरे ब्रेस्ट में कोई भी गांठ नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। Amen. How much tears. कितने आंसू इसने बहाए, But Jesus turned her sorrow into joy. लेकिन यीशु मसीह ने इनके दुख को आनंद में बदल दिया। As Brother Samuel Dinakaran, my beloved son, prayed along with her, Jesus came and wiped away her tears, removed all the 17 tumors. और जैसे मेरे बेटे सैम पॉल दिनकरन ने इस बच्ची के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इसके जीवन में कार्य किया, जो भी 17 गांठें इनके छाती में थीं वो सब को परमेश्वर ने निकाल दिया। Blessed her in her education. और पढ़ाई में भी इन्हें आशीषित किया। I know every one of you will testify about your miracle tonight. और मैं जानता हूं कि आज की रात आप में से हर एक व्यक्ति अपने चमत्कार की गवाही यहाँ The देगा। same Jesus who healed her, who gave her new life, is with you right now. वही यीशु मसीह जिसने इस बच्ची को चंगाई दी है और जिसने वही यीशु मसीह आज आपके साथ He है, is by your side. वो यीशु मसीह आपके बगल में बैठा Jesus है। just said, ask in my name and I will do it. यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Wherever you are, जहां कहीं आप हैं keep praying. प्रार्थना करते Keep रहें, praying. प्रार्थना We करते have रहें, all come to see Jesus. क्योंकि हम सभी यहाँ यीशु मसीह को We have देखने आए shed हैं। enough tears. हमने बहुत आंसू बहा लिए। Now is the time for your miracle. अब आपके चमत्कार के लिए समय है, Now is the time. अभी वो समय है। Jesus is moving amongst us. और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कार्य कर We रहा will है। pray together right now. हम इस समय मिलकर साथ में प्रार्थना करेंगे। Father, thank you for healing your beloved daughter. पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी प्यारी बेटी को चंगाई दी She has come all the way to share about your love for her. और ये इतने दूर से आई हैं आपके प्रेम की गवाही यहाँ पर देने Thank के you for लिए। healing her, Lord. धन्यवाद इन्हें चंगाई देने के लिए प्रभु। Thank you for giving her new life. धन्यवाद इसे नई जिंदगी देने के लिए। You are alive. आप जीवित हैं। Give her a golden future, Lord. ओ प्रभु आपने इसके लिए एक सुनहरा And she भविष्य रखा has है brought faith to so many people और इन्होंने कई लोगों के मनों में विश्वास through को her लाया है testimony. अपनी इस गवाही के द्वारा। Let her have all the blessings in life. तो होने दे प्रभु जीवन में हर प्रकार की Raise her इसे to आशीष great मिले heights. और ऊंचाइयों तक इसे उठाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even now, my friends, अब मेरे मित्रों, wherever you have your sickness, जहाँ कहीं आपके शरीर में बीमारी put your है hand in that place. और उस बीमारी के स्थान पर आप अपना हाथ Put your hand रखें upon your chest और या फिर अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, as a symbol of faith before the Lord. परमेश्वर के सामने विश्वास को दर्शाने के रूप में। Now He will touch you. और अब वो आपको स्पर्श करेगा In a few minutes, बस कुछ ही मिनटों में। Brother Samuel Dinakaran will be ministering to us and praying again for all of us. ब्रदर सैम दिनकरन हमारे लिए मिलकर साथ में प्रार्थना करेंगे। But right now, लेकिन इस समय I know your faith is high. हम जानते हैं आपका विश्वास बहुत ज्यादा है, Believe the Lord तो आप प्रभु पे विश्वास and रखें cry out for your miracle. और अपने चमत्कार को पाने के लिए उसे पुकारें। The Lord will perfect everything. तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही कर I देगा। see a name, Teresa. मैं यहाँ पे एक नाम देख रहा हूँ, थेरेसा। You're suffering with a blood disease for a long time, Teresa. थेरेसा, आपके शरीर में जो खून में बीमारी है, कई सालों से आप परेशान हो You get terrible cramps also. और आपको बहुत ही मरोड़ आती है शरीर You're में crying that you're not able to do anything for your family. और आप रोती हो क्योंकि आप कहती हो कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। Teresa, the Holy Spirit shows me that He is healing you now. थेरेसा, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि वो इस समय आपको चंगाई दे
रहा है। Be healed in Jesus' name. चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। I see many people with the problem of fits. और मैं देख रहा हूँ कई लोगों को मिर्गी की बीमारी है। Some have epilepsy. कुछ लोगों को उस शरीर में मिर्गी है। I see the hand of the Lord coming upon you. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। I command you to be healed in Jesus' name. और मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाएं। Let the epilepsy stop, Lord. और ये जो मिर्गी की बीमारी है ये रुक जाए। Let them be healed. और ये चंगे हो जाएं। That every organ which is not functioning इनके शरीर का वो अंग जो काम नहीं कर रहा है function normally from now on in the name of Jesus. अब से आगे को सही तरीके से काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Lord, lay your hands upon your children प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को अपने बच्चों पर रखें and heal them, Lord. और प्रभु इन्हें चंगाई दे, Deliver them, Lord. इन्हें छुटकारा दे प्रभु, Set them free इन्हें आजाद कर दे and make them well from now on. और अब से इनकी सेहत को एकदम अच्छा कर दे। Honor their faith. इनके विश्वास का आदर करें। If the eyes are not functioning properly, अगर इनकी आंखें सही तरीके से काम नहीं कर ears रही, are not functioning properly, इनके कान अगर सही तरीके से काम नहीं कर they're not रहे, able to talk, अगर ये बोल नहीं पाते they're हैं, not able to breathe, या इनमें सांस लेने में तकलीफ they're है, not able to digest properly, या खाना सही तरीके से पचता नहीं है, if they're not able to walk properly, यदि वो सही तरीके से चल नहीं पाते, whatever they're suffering from, प्रभु जो कुछ इनकी दुख पीड़ा हो, remember that you have gone through their suffering on the cross. ओ प्रभु याद करें कि इस दुख और पीड़ा से उस क्रूस के ऊपर आप भी गए हैं And come, और आ जाएं, lay your nail-pierced hands upon them, Lord अपने Jesus, कीले से छिदे हुए हाथों को इन पर रखें प्रभु यीशु and heal, और इन्हें चंगाई दे, heal. चंगाई दे। Father, heal your people. पिता अपने लोगों को चंगाई दे Let every sickness come out. और हर बीमारी बाहर निकल जाए Let there be deliverance, Lord. और प्रभु छुटकारा हो Every evil power हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति which have bound them in sin, जिन्होंने इन्हें पाप में बांधे रखा bound them है, in sickness, बीमारी से बांधे रखा है, bound them in darkness, अंधकार से बांधे रखा है, bound them in problems in the family. परिवार की समस्याओं में बांधे रखा है। I command you evil powers to leave now in Jesus' name. हम दुष्ट आत्मा की उन दुष्ट शक्तियों का आज्ञा देते हैं इन्हें छोड़कर निकल जाए यीशु My मसीह के dear नाम में। friend, मेरे प्यारे मित्रों, Jesus is doing miracles for you, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे but हैं, you need Him in your heart. लेकिन ये जरूरी है कि आपको Would you उन्हें open your अपने heart हृदय में wherever बुलाएं। you are? आप जहाँ कहीं है अपने हृदय को खोलें Say, Lord, come into me. और कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ I जाएं। don't want to be in sin. मैं पाप में जीवन जीना नहीं I चाहता, don't want to be with the devil. मैं शैतान के साथ रहना नहीं I want चाहता, a pure life. मुझे शुद्ध जीवन I चाहिए। want to be a child of God. मैं परमेश्वर आपकी संतान होना Would you चाहता हूँ। say that right now? क्या आप ऐसा इसी समय कहेंगे? Open your heart and say, Lord, make me your child. अपना हृदय खोल कर कहें प्रभु मुझे अपनी संतान बना ले। Open your mouth and say, come into my heart, Lord. अपना मुंह खोल कर कहें कि प्रभु मेरे हृदय में आ जाए। I want you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है, I want you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। Save me from darkness and sin. पाप और अंधकार से मुझे बचा ले प्रभु। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। Even as I am singing this chorus, और जैसे मैं इस कोरस को you गाऊंगा, cry out to God. आप परमेश्वर को पुकारें। The Lord is filling you right now. परमेश्वर इस समय आपको भर रहा The है, Holy Spirit is empowering you right now. पवित्र आत्मा इस समय अपनी सामर्थ्य से आपको भर रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरे, आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरे, अपनी आंखों की पुतली जैसे
In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन आमीन। I'm so glad we are in the presence of God. मुझे बड़ी खुशी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Tomorrow morning we'll be meeting all the partners of Jesus Calls. कल की सुबह हम जितने यीशु बुलाता है कि पार्टनर्स हैं, हम उनसे मिलेंगे। How many of you are partners of Jesus Calls? Can I see your hands, please? आप में से कितने लोग जीसस कॉल्स के पार्टनर हैं? अपने हाथ को उठाकर हमें दिखाएं। Young partner or family blessing plan or Jesus Calls. Chahe. Wonderful. We would like to meet you as a family at the Christian Revival Center at 9:30 in the morning to pray for you. और एक परिवार के रूप में क्रिश्चियन रिवाइवल सेंटर सुबह 9 बजे आपके लिए आपसे मिलना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You may go to the Jesus Calls stall at the back and get information about the meeting. यहाँ पर यीशु बुलाता है का स्टॉल है, आप वहाँ जाकर और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। We are so privileged to have our Honorable Chief Minister of the Government of Arunachal Pradesh with us. It's a great honor, it's a great joy, and we warmly welcome you, sir, our Honorable Sri Pema Khandu. हमारे लिए बड़े आदर की बात है कि अरुणाचल प्रदेश के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी हमारे बीच में आए हैं और हमें बड़ी खुशी है सर आप यहाँ पर आए। Thank you, sir, for taking time to encourage us to pray. और धन्यवाद देते हैं सर आपका कि आपने समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हैं ताकि हम प्रार्थना में और उत्साहित हो And we सकें। value everything that you do for the people of Arunachal Pradesh. और जो भी आप अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए करते हैं सच में हम उसका आदर करते हैं, उसकी कीमत करते हैं। And we would like to pray for you, your Council of Ministers, and for the state of Arunachal Pradesh at this moment for और God's blessing. इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके सारे मंत्रालय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। Shall we all stand to our feet and thank God for our beloved state of Arunachal Pradesh, which is God's garden. और आइए हम सब खड़े हो जाएं और सब मिलकर ऐसे अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना करें जो मानो परमेश्वर की बगीचा है, गार्डन है। And it's the land of the rising sun. और ये तो उगते सूरज की जमीन है। And we are so happy to be here. और हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। As we look up to God in prayer, जैसे हम प्रार्थना में इस समय प्रभु की ओर let देखेंगे us all thank God for this wonderful state. तो आइए मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस बहुत ही बेहतर राज्य के लिए। Can I humbly request our Honorable Chief Minister to join us here, please? और हम And our विनती करेंगे family हमारे and the Honorable Ministers who are with us, whom I introduced earlier. हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी और Shall we give our Honorable Chief Minister and our Honorable Ministers and MLA a big hand clap and warmly welcome them? आइए जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। Let's all look up to God in prayer. प्रार्थना में इस समय हम प्रभु की ओर देखेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। Thank you for your love for the people of Arunachal Pradesh. धन्यवाद देते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों के प्रति जो आपका प्रेम है इसके लिए। Thank you for your great love. धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। It is you who chooses who should rule the state from time to time. प्रभु समय समय पर ये आप हैं जो लोगों को चुनते हैं कि कौन राज्य पर शासन करेगा। Thank you for choosing our dear Honorable Chief Minister and his cabinet. हम धन्यवाद देते हैं आपने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को आपने चुना और उनके सारे मंत्रीगणों को चुना इस राज्य पर शासन करने के I लिए। know you love them. मुझे पता है आप इनसे प्रेम करते You हैं, are a father to them, आप इनके लिए पिता के समान हैं। enabling them to carry all these lakhs of people. लाखों लोगों के बोझ को उठाकर चलने की ताकत प्रभु आप इन्हें देते हैं। Today we all pray प्रभु आज सब हम मिलकर that प्रार्थना you will करते हैं। bless our rulers. प्रभु हमारे इन अधिकारियों को, शासकों को आप आशीष दें Let everyone live in peace, और इनमें से हर एक व्यक्ति शांति से जीवन जिए। have prosperity, इन सभी के जीवन में संपन्नता आए as the government is blessed by you. जैसे आपके द्वारा ये सरकार आशीषित हुई है। Let them have your guidance to do whatever you want to do for the people, Lord.
तो प्रभु आपकी ओर से इन्हें मार्गदर्शन दें, ताकि आप जो चाहते हैं कि लोगों के साथ किया जाए उस विषय में आप इनकी अगुवाई करें। Bless their efforts and make it reach all the people of Arunachal and let them have great peace and prosperity. इनकी मेहनत और परिश्रम को आशीषित करें, ताकि ये जो कर रहे हैं वो बातें अरुणाचल प्रदेश की प्रत्येक नागरिक तक जा सके और हर एक व्यक्ति प्रभु आशीष और संपन्नता को पा सके। Protect the state. इस राज्य की रखवाली करें। Let your hand be upon this state. इस राज्य पर आपका हाथ बना रहे। Let it progress as a great tourist destination. और होने दे प्रभु ये राज्य एक बहुत ही बड़े पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ता जाए। And have all the infrastructure. और यहाँ पे और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आप दें। Great education. और पढ़ाई शिक्षा यहाँ पर बढ़ती जाए। And all the finance to do it. और इस काम को करने के लिए लगने वाली हर एक आर्थिक सहायता आप दें। Bless the family of our dear Chief Minister. और मुख्यमंत्री जी के परिवार के लिए भी हम आशीष मांगते हैं। And the families of the ministers. और सारे मंत्रीगणों के भी परिवारों को आप आशीष दें। Let there be peace. ताकि इनके जीवन में शांति So that रहे, they can care for other families. ताकि ये और परिवारों को संभाल सके। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। We ask this prayer in Jesus' matchless name. ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. You may please be seated. मेहरबानी करके आप बैठ जाएं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या ही सुनहरी वो बात है कि प्रभु के लोग आपस में मिले। आप खुश हैं? प्रेज़ गॉड। एक बार और यीशु के लिए जोरदार ताली बजा दें। थैंक यू। इस समय हम अपने प्रोग्राम में आगे और बढ़ेंगे और मैं इस समय, क्योंकि बाइबल कहती है कि क्या ही सुनहरे वो पाँव जो सुसमाचार को लेके जाते हैं, और हमारे अधिकारियों को, राजाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय हम स्वागत की कड़ी जाएंगे और आप सब मिलके हम हर एक हमारे गेस्ट का, हमारे हर एक स्पीकर्स का, वक्ताओं का हम स्वागत करें।